Students, now we will do question number 8, exercise 8.1. Statement is, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. No, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने देखना है, इक्वल है या नहीं है. उसके लिए आपको जो गिवन है वो आपने सबसे पहले लिखना है. व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज 3 cot A is equal to 4. Make a right angle triangle here. यदि आप right angle triangle यहाँ क्रिएट करते हैं and assume the angle A is here and this is 90 degree. AB is equal to base, BC is equal to perpendicular. And the largest side CA is hypotenuse. Now 3 cot A is equal to 4, meaning cot A is equal to 4 by 3. That means reverse of tan A, and it becomes 1 divided by perpendicular divided by base, and the value of cot A becomes now 4 by 3 is equal to base divided by perpendicular. Therefore, the value of base here is 4 and the value of perpendicular here is 3. And hypotenuse की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन मार्क. बेस इज AB and perpendicular is BC. Now by using Pythagoras theorem, आपने द लार्जेस्ट साइड AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लार्जेस्ट साइड इज बाय यूजिंग Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. Substitute the value of AB and BC. Now AC square becomes, the value of AB is base is 4 square, and the value of perpendicular BC is 3 square, and it becomes 16 plus 9 is equal to 25. This is the value of AC square. Now the value of AC becomes root 25 is equal to 5 units. तो लार्जेस्ट साइड आपके पास 5 यूनिट्स आ गई और बेस आपके पास 4 है और परपेंडिकुलर यहाँ 3 है. अब आपने 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये आपने देखना है कि इक्वल है या नहीं है. तो टेक राइट हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए, cos ए एंड sin ए. What is the value of tan A here? Tan A is 1 divided by cot A. Tan A जो होगा वो cot A का रिवर्स होगा, लेकिन cot A की वैल्यू हमारे पास 4 by 3 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा. इसका रिवर्स हो जाएगा तो tan A की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 3 by 4 हो जाएगी. सिमिलरली sin A की वैल्यू आपके पास क्या होगी? पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर divided by her ball hypotenuse. What is the value of perpendicular is 3 and what is the value of hypotenuse we find here is as a 5, and cos A is equal to base divided by hypotenuse, and the value of base is 4 and value of hypotenuse is here is 5. आगे हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे. तो इसका मतलब यह है कि पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उसको सोल्व करेंगे, उसकी कुछ वैल्यू आएगी. राइट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी कुछ वैल्यू आएगी. दोनों इक्वल है या नहीं है ये हमने देखना है. नेक्स्ट इज टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए. यदि इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 by 1 माइनस tan A की वैल्यू 3 by 4 है, 3 by 4 रेज टू पावर 2
1/1 प्लस 3/4 रेज टू पावर 2। और ये आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस 9/16 एंड 1/1 प्लस 9/16। इसको यदि आप एलसीएम के द्वारा सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास 16 आ जाएगा। 16 माइनस 9 सोल्व करने के बाद, और यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 प्लस 9, ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7, 7/16, और 16 प्लस 9 इज 25/16, इट बिकम्स 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25, कैंसल 16 से 16, ये हो जाएंगे 7/25। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? राइट हैंड साइड आपके पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। Substitute the value of cos A and sin A here. The value of cos A is 4/5 raised to power 2 minus the value of sin A is 3/5 raised to power 2. It becomes 4/5 means 16/25 minus 9/25 make 25 as LCM. 16 minus 9 after solving it, and it becomes 16 minus 9 means 7. 7/25. Compare these two values. First value is this and the second value is 7/25, and the first value is also 7/25. Compared to these two values, both the values are same. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Therefore, left hand side is equal to right hand side, and both the values are equal to 7/25. ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो इसको आपने समझना है, इसे कॉपी पे लिखना है। बेसिक सिस्टम यही है बेटा कि आपको 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करनी है, और तीनों साइड की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। जो भी आपने tan थीटा cos थीटा sin थीटा फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करना है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बेटा।